The last couple of meters of the tunnel rescue operation is currently in full swing. Rat miners are now working, like we've been reporting first, with the National Disaster Response Force teams. Rescuers are now inching ever closer to the 41 trapped workers inside the collapsed tunnel. 30 bedded facilities are ready at the tunnel site. An Indian Air Force helicopter is on scramble alert at a helipad very close to the tunnel's mouth to airlift workers tomorrow if that is deemed necessary. But a 41-bed hospital near the tunnel site has already been prepared at the Chinliasur area, where the first treatment of the workers will be taking place. So it's been a day of very, very rapid developments. 2 meters to go before that lifeline pipe actually reaches the trapped workers. But outside the tunnel, as you can see in these pictures and the other ones we're showing you, all preparations are in full swing, with indications that the trapped workers could be extracted as early as sometime this evening. Now, I understand, viewer, that this has been reported multiple times over the last couple of days, but that actually goes to the kind of uncertainty that has remained on the ground and the challenges that have emerged as a result of the momentum that has been gained by the rescue crews on the ground. Now, ever since news of the tunnel breakthrough happened, relatives of the trapped workers, their families have been celebrating. They've been celebrating in anticipation of the reunion with their loved ones. They will be meeting their family members very, very soon. We have no doubt at all. We have full faith in the rescue workers in just a short while from now. India Today spoke to some of them very close to the tunnel site. Listen in. 16-17 days in Uttarkashi tunnel, and this is the residence of Shobhik Pakhira in Hooghly district of West Bengal, where her mother is now performing prayers for the sake of her son, because for the last 16 or 17 days they have been very depressed. They were only praying to the God, but now when the rescue work is on the verge of completing, the family is very happy. They are elated. They are now performing puja prayers. Now we'll talk to the lady who is the mother of Shobhik Pakhira. আপনার এখন কি খবর এসেছে ওখান থেকে? খবর এসছে বলতে সেই বিকালের দিকে যখন 2টোর পর খবর আসলো যে কাজটা সাকসেস হচ্ছে, তাদের এখনো তখন কিন্তু উদ্ধার করা হয়নি, সেই খবর আমাদের কাছে এখন এসে পৌঁছায়নি। আমরা এইটুকুনি খবর। বিগত 17 দিন কেমন গেছে? মানে খুবই তো খারাপ অবস্থায়, খুবই খারাপ অবস্থায় ছিলাম। তবু ছেলের মুখে যখন ভয়েস রেকর্ডের কথা 2 দিন যখন হয়ে গেছে, 2 দিনের পর শুনতে পাই, তখন বলছে যে এটা ছেলের গলা। আমি তখন বলছি হ্যাঁ মা, ছেলের গলা বুঝতে পারবো না, এটা আমারই ছেলের গলা। সেই থেকেই আমি বিশ্বাস করি না ছেলে আমার ঠিকই আছে। তারপর পরপর 2 দিন 3 দিন ভয়েস রেকর্ড ফোনের এতে পাঠায়, আমি তার গলার আওয়াজ শুনি, আমি বলি না ঠিকই আছে, সেও কথা বলে। लखीमपुर खीरी के मंजीत टनल के अंदर थे और बाहर चौधरी उनके पिता खड़े थे। आज फैमिली मेंबर का ये कार्ड लगा हुआ है, हाथ में बैग है, चोट भी आई इस दौरान में उंगली पे, लेकिन मुस्कान अब दिखाई दे रही है चौधरी जी के चेहरे पे। वो संघर्ष जो 17 दिनों से यहाँ चल रहा था, कितना मुश्किल था आपके लिए? हम सबको मुश्किल थी तो हमको भी मुश्किल थी। आज सब खुश तो हम खुश। आंखों में आंसू आपके पहले से आ रहे हैं? जी नहीं है, खुशी के आंसू। हाँ, खुशी के आंसू। कुछ घर में फोन कर दिया? जी फोन तो नहीं किया, हम तो चलाना ही मोबाइल नहीं जानते, किया नहीं, मगर खबर हो गई होगी वहाँ से, ये मान के चल रहे हैं। क्योंकि आपकी पत्नी आसक पे थी, उस दिन वो बहुत घबराई हुई थी, अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी, और हम लोगों ने उन्हें कहा था कि सुरक्षित है मंजीत। आज उस बात पे भरोसा होगा जब बाहर आएंगे मंजीत? बिल्कुल भरोसा होगा, खुशियाँ भी होगी, और वो खुशियाँ होंगी जो खुशी में। अच्छा, ये बैग मैं देख रहा हूँ आप लेके खड़े हैं, इसमें आपके कपड़े हैं, मंजीत के भी हैं? इसमें हमारे मंजीत की ये बैग। अच्छा, मंजीत के लिए दूसरा आपने थैला पिट्ठू बैग रखा हुआ है। यहाँ कपड़े यहाँ थे जो छूट गए थे, वो तो अंदर चला गया था, वही कपड़े आज। तो ये लेके आप एम्बुलेंस में साथ बैठे? जी जी। कहाँ जाएंगे? अब जहाँ जाएंगे तो नाम नहीं पता। जी जी जी, ठीक ठीक।
क्या बेटे से कुछ सोचा है मन में? 17 दिनों में कितने ख्याल आए होंगे, है ना? जी जी, क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा, डांटूंगा, सुनूंगा, गले लगाऊंगा, क्या चल रहा है? वो खुद हमको समझाता था घर वालों को कि आप चिंता मत कीजिए और बोल देना कि हाँ मैं यहाँ सही हूँ, साथ हूँ और घर पे कोई चिंता की प्रॉब्लम ना करे। तो मनोबल एकदम मजबूत हम आते थे खुद ताकत भर देते थे, जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है इस तरह ताकत भर देते थे। आपके अंदर एकदम मनोबल भर देता अंदर वालों के टीम के हम खुद भर देते थे, इतनी हिम्मत की। अच्छा, वो हिम्मत के बीच में हमारी भी हिम्मत बनी छुपी रहे। ठीक है। हम चाहेंगे कि बहुत समय मिले आपको मंजीत के साथ, वक्त बिताने का समय मिले। परिवार के लिए बहुत संघर्ष का वक्त रहा है। आप पहले भी एक घर में हादसा हुआ। जी जी हाँ, वही भी बहुत लंबा हादसा था, जो कि वही चोट से हमने बड़ी हिम्मत करके जो जीवित हैं कि हमने एक बेटा खो दिया, दूसरा माताजी आज पर्वत ने अपना आंचल खोल दिया बाहर, वो मेहमानी उनकी पूरी हो गई, पर्वत भी की इलाज बच गई, हमारी भी बच गई। बाबा बौगनाथ की बहुत पूजा हो रही है, वो जी भी जी सुरक्षित जी भेज रहे हैं बेटे को बाहर। जी जी, तब नाम है हो गया। गले लगेंगे बेटे से? बिल्कुल, टाइम मौका मिलते ही गले लग जाएंगे। कि कौन अंदर फंसे हुए थे? भैया। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यूपी। यूपी से? जी सर। यूपी में कहाँ से? श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। अभी आपको अंदर बुलाया जा रहा है, क्या आप एम्बुलेंस के साथ ही ट्रैवल करेंगे? जी सर, बिल्कुल सर, हम लोग फैमिली मेंबर है ना सर। हाँ जी सर। तो सीधे हॉस्पिटल जाएंगे साथ में आप लोग? बिल्कुल, उनका ट्रीटमेंट करेंगे पहले तो, अगर उनका हेल्थ सही रहेगा तो फिर भी मतलब कि एम्बुलेंस में उनको बिठाया जाएगा और हॉस्पिटल में लेके जाएगा, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, चेकअप करेंगे उनका। तो अगर उनका हेल्थ सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा तो फिर भी मतलब कि उनको लेके जाएगा, और अगर हेल्थ नहीं सही रहेगा तो फिर भी लेके जाएगा उनको। गबर सिंह 41 मजदूरों में से एक, जिसने हिम्मत बांधी रखी है अंदर, और बाकी लोग जो टूट रहे थे, मनोबल टूट रहा था, मनोस्थिति टूट रही थी, तो योगा कराया, उनको गेम्स में बिजी रखा। उस गबर सिंह के भाई जयमल सिंह नेगी इस वक्त आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया, गबर 41 मजदूर सब बाहर आने वाले हैं? बिल्कुल बाहर आने वाले हैं और बस अब इंतजार की घड़ियां जो है अब अंत की तरफ बढ़ रही हैं। प्रकृति भी बहुत प्रसन्न है और तमाम मुश्किल लग रहा है वो पहली झलक देखना, ये इंतजार जो है मुश्किल लग रहा है अपने आप? बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल लग रहा है, बस व्यग्र है, हमारा मन बहुत व्यग्र है। 17 दिन तक आप यहीं बने रहे। मैं आपसे पिछले 10 दिन से रोज बात करता था, आप परेशान दिखते थे, कभी आपका मोराल बढ़ता था, कभी डाउन होता था। अभी मन में क्या महसूस हो रहा है? नहीं, अब तो वो सब भूल करके अब तो खुशी का वक्त है। वो सबको सोचना अभी इस समय बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है कि उन पलों को याद किया जाए। घर वालों को बताया, खबर दे दी? अब खबर दे दी है मैंने। क्या किया? मैंने उनको कह दिया कि बहुत जल्दी हम मिलने वाले, फिर वीडियो कॉलिंग से आपसे बात कराते हैं। तो वो लोग भावुक हैं वो? बिल्कुल भावुक, निश्चित रूप से। अब मिलन के लिए भावुक हैं, पहले बिगड़े के लिए भावुक थे। हम क्यों रोए? तुम अच्छे हो, भले हो, बात कर रहे हो, बस रास्ता ही नहीं ना है। रास्ता हो जाएगा, बाहर आओगे। हमें भगवान पर पूरा भरोसा है। बोला था कि आज शाम को नहीं तो सुबह जरूर आ जाएंगे मम्मी, भगवान से दुआ करो।